السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدہ حاصل کیا، اور جو انسانوں میں سے ان کو دوست رکھتے تھے وہ کہیں گے ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے یہاں تک کہ ہم اس وقت تک پہنچ گئے جس کا تو نے مقرر کیا تھا، جو وقت ہم اس وقت تک پہنچ گئے۔ اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ سمجھے آپ؟ سورہ انعام کی 128 نمبر کی آیت ہے، 128۔ حشر کے دن اللہ فرمائے گا، اے گروہ جنات کی جماعت، تم نے انسانوں سے بہت فائدہ حاصل کیا، اور انسانوں میں سے جو اس کو دوست رکھتے تھے، جنوں کو دوست رکھتے تھے، وہ کہیں گے ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ سمجھا؟ ابھی صاحب سے کچھ لوگوں میں گمراہی پھیلاتے کہ ہمارے قبضے میں جن ہے۔ سمجھا آپ؟ یہ آیت کو بتا کے کہ دیکھو جنات ہمارے قبضے میں رہتے، ہم نے حاصل کیا، ان سے مدد لے کے کام کیا جنات سے۔ ایسا کچھ لوگ عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، گمراہ کرتے کہ ہم دیکھو دیا ہے نا کہ جناتوں سے فائدہ حاصل کیا۔ جنات نے انسانوں سے فائدہ حاصل کیا، لکھا ہے قرآن میں۔ سمجھا؟ تو کیا فائدہ حاصل کیا؟ لوگ گمراہ کرتے کہ ہمارے قبضے میں جن ہے، ہم جو چاہے کام کر لیں، اور ہم جن کو بھگاتے، کسی کو جن پکڑ لیا تو ہم جن کو بھگاتے ہیں۔ یہ سب گمراہی پھیلاتے، سب چیٹنگ ہے، دھوکہ، لوگوں کو گمراہ کرنا۔ سمجھا آپ؟ اس کا کیا مطلب ہے، صحیح مفہوم میں بتاتا ہوں آپ کو۔ سمجھا آپ؟ یہ لوگ تو دکان کھول کے بیٹھے ہیں کہ بھائی کوئی پاگل ہو گیا، کوئی دماغی توازن جس کا خراب ہو گیا، دماغ کی نس دب گئی، خراب ہو گئی، برین۔ سمجھا آپ؟ تو اس کو یہ لوگ بولتے کہ اس کو جن پکڑ لیا، عالم مفتی لوگ، مولانا بولے اس کو جن پکڑ لیا۔ سمجھا آپ؟ ایسا بول کے گمراہ کرتے ہیں۔ جن پکڑتا ہی نہیں اور جن دکھتا ہی نہیں، دونوں بات قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے۔ جن دکھتا ہی نہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں اللہ نے بتا دیا، یا بنی آدم، پورا اوپر سے پڑھنا، شیطان اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے، تم انہیں نہیں دیکھتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ بنی آدم کو بول رہا ہے، آدم کی اولاد سب آگے، اس میں پیغمبر، صحابی، عام انسان، عالم، سب آگئے۔ یا بنی آدم، شیطان اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے، تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یعنی جنات لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ اللہ سورہ اعراف میں بتا دیا، آیت نمبر 27۔ تو دکھتے ہی نہیں بول رہا ہے اللہ۔ یہ لوگ بولتے ہیں ہاں تم کو جن پکڑ لیا ہے، یعنی عالم لوگ، مفتی لوگ کو دکھتے، جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں نا ان کو دکھتے۔ خلاف بات ہے نا قرآن کے۔ سمجھا؟ صرف معجزے کے طور پہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، ان کو دکھتے تھے، ان سے کام لیتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ معجزہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایکسیپشنل کیس، وہ سب کے لیے نہیں رہتا ہے۔ سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، پیغمبر کو نہیں دکھے، یہ عالم مفتی کو دکھ رہے، عالم مفتی مل رہے، دکھ رہے، تعلیم دے رہے، سب گمراہ کر رہے، پیغمبر کو نہیں دکھے۔ سورہ جن آیت نمبر 1 میں دیکھ لو آپ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا رہے تھے تو جنوں کا گزر ہوا، جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا اور وہ اپنی قوم میں جا کے بتائے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ تو نبی کو بھی نہیں دکھے، وحی کے ذریعے اللہ نے جبریل علیہ السلام وحی بھیج کے بتایا، کہو میرے پاس وحی آئی، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ تو یہ آیت سورہ جن کی پہلی نمبر کی 1 نمبر کی آیت میں کیا بتا رہے کہ اللہ نے اطلاع دی نبی کو، ایسا ایسا جنات لوگ قرآن سن کے گئے، آپ تو لوگوں سے کہو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ تو وحی کے ذریعے نبی کو بھی بتایا گیا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جن نہیں دکھے، نہ ملے، نہ بات کیے۔ 23 برس قرآن نازل ہوا، یہ قرآن 23 برس نازل ہوا نا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے قرآن نازل کیا، کہیں بھی نہیں ہے جنات سے ملے، بات کیے، یا تبلیغ کیے، یا باتیں کیے، گلے ملے، ہاتھ ملائے،
साथ में उठे बैठे खाना खाए, सब बकवास बातें। आलिम मुफ्ती चीटर गुमराह कर रहे आवाम को। धंधा है ना, आ रहे हाँ जिन पकड़ लिया, हम भगाते जिन को, हमारे कब्जे में जिन्नात है, उससे हम काम लेते हैं, सब गुमराही बातें हैं, समझा। ये आयत पढ़ के, आयत दिखा के गुमराह करते हैं, समझा। असल इसका बात क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये आयत का असल मफहूम, असल मतलब क्या है। गौर करें तो मालूम पड़ता। पूरा कुरान पढ़े रहेंगे, पूरा कुरान की जानकारी लेंगे, मालूमात रहेगी तो समझेंगे। एक तो दिखता नहीं जिन, ये आलिम मुफ्ती को बोले हमको दिखता है, आपको नहीं दिख रहा है, हालांकि सब सामने ही बैठे लोग, सब 2 4 5 रहते ही ना सामने, उनको नहीं दिख रहा है, इनको ही दिख रहा है सिर्फ। सब झूठे चीटर, समझे आप। एक तो दिखते नहीं, दूसरा शैतान खुद कह रहा है, इब्लिस जिन खुद कह रहा है मेरा तो तुम पे कुछ जोर था ही नहीं। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22 मेरा तो तुम पे कुछ जोर था ही नहीं, हाँ मैंने तुमको सिर्फ बुलाया था, समझे आप। मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुमने मेरा कहना मान लिया। कैसा बुलाता हो, उसका बुलाना, जिन्नात का बुलाना कैसा है, वसवसा, अल्लज़ी युवस्विसु फी सो, है ना, वसवसा दिलाता है, बुरे काम कर ले, चोरी कर ले, जिना कर ले, डाका मार ले, किसी का हक मार ले, ऐसा आता है ना ख्यालात। वसवसा मैंने बुरे ख्यालात, रॉन्ग थॉट तो आते, तो उसने बुलाया था, कर ले कोई नहीं देख रहा है, हक मार ले, जिना कर ले, ऐसा आता है ना ख्यालात लोगों को, तो ये उसका बुलाना है। तो तुमने खुद अमल किया, समझा आप। तो वही बोल रहा मेरा तो तुम पे कुछ जोर था नहीं, सूरह इब्राहिम आज 22, हाँ मैंने तुमको बुलाया था, तुमने मेरा कहना मान लिया, तो मुझको मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो, हशर के दिन कहेगा, देख लो आप सूरह इब्राहिम। तो उसका सिर्फ बुलावा है कि गलत काम कर, हम करते हैं और पावर हमारे हाथ में, करे या नहीं करे। अल्लाह बोला मत करो, शैतान बोलता करो, तो अल्लाह की बात पे चल रहा कि शैतान, तो ये शैतान का बुलावा है। तो उसने सिर्फ बुलाया था तो हमने उसका कहना माना, अल्लाह का कहना नहीं माना। अल्लाह बोला मत कर चोरी, जिना, किसी का हक मत मार, शैतान बोलता है कर ले कोई नहीं देख रहा, माफ कर देगा अल्लाह, कर ले। तो किसके बोलने पे चले, हमारे अख्तियार में, चाहे तो अल्लाह के कहने पे चले चाहे शैतान, समझा। तो शैतान सिर्फ वसवसा दिला सकता है, उसका कोई कैरेक्टर इंसानों से उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं है, न रूप बदल सकता है, आ सकता है, समझा आप, न आवाज सुना सकता है, न किसी पे हमला कर सकता है, न किसी के अंदर घुस सकता है, ये सलाहियत ही नहीं है, समझा आप। सब बातें गौर करने की नहीं है, समझा आप। अगर ऐसी सलाहियत अल्लाह दे देता जिन्नात को कि इंसान का रूप बदल के जिना कर ले, चोरी कर ले, है ना, किसी का सामान ही उठा के लेके चले जाए, रूप बदल के अगर ये करता, भेष बदल के, तो दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाता, समझा। पुलिस स्टेशन वाले भी परेशान, भाई बैंक से पूरा पैसा जेवर लेके जिन्नात गायब हो गया, है ना, जिन इंसानों को तो दिखता नहीं, जिन्नात लेके गायब हो गया। अगर रूप बदलता तो फिर दिखता ना सबको, अगर इंसानी शक्ल में आता तो सब इंसान देखते ना कि इंसान है, भले तो नहीं पहचानते जिन है। अगर भेद बदलने का सिस्टम अल्लाह रखता तो कितनी गड़बड़ होती। आपका ही चेहरा बदल के, आपका ही चेहरा बदल के, आपके जैसा रूप बदल के अगर वो बैंक में चोरी करे, सीसीटीवी में तो फोटो आ जाएगा, कैमरे में चोरी करके गया, जिन्नात लेके चले गए, आपको पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि आपकी शक्ल में आया ना वो बदल के। अगर शक्ल बदलने का उसको कैरेक्टर अल्लाह देता तो पुलिस आपको पकड़ती, तो आप बोलते अरे मैं कहाँ था, मैं तो चोरी नहीं किया, तो फंस जाते ना। सीसीटीवी में तो आपका चेहरा रहता, आपको पकड़ लेती पुलिस, आप कितना भी बोलो, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं किया, लेकिन आपका तो चेहरा आ गया ना सीसीटीवी में। अगर रूप बदलता आपकी शक्ल का तो, या रेप करता, आपकी शक्ल बदल के रेप करता, तो कैमरे में आपकी शक्ल आ जाती, तो आप क्या बोलोगे, मैं नहीं किया, लेकिन पुलिस थोड़ी मानेगी, आपका चेहरा सीसीटीवी में देखेगी, पुलिस आपको पकड़ेगी। करने वाला जिन रूप बदल के करके चले गया, जिना, चोरी, डाका, समझा। अब आप भी परेशान, लोग भी परेशान, पुलिस भी पकड़ के ले जाती, आप पटकते रह जाओ, दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाता है, समझा। या किसी की बीवी से ही रेप करके चले गया, बोले अरे शौहर ही तो आया था, शौहर के बेस में, तो सब गड़बड़ हो जाता है ना निजाम, समझा आप। मालिक आए और पूरा गल्ला ही लेके चले जाए, कंपनी का मालिक पूरा कैश ही लेके चले जाए दुकान से या मॉल,
मालिक की शक्ल में जिन आके लेके पूरा चले गया। फिर मालिक क्या बोला, अरे किधर गया केश? तो बोले आप ही तो लेके गए अभी। तो बोला मैं कहाँ लेके गया, मैं तो आया ही नहीं। अगर जिन का रूप भेद बदलने का सिस्टम रहता तो सब गड़बड़ हो जाती, दुनिया का निजाम धर्म भरम, समझा। मर्डर करके चले जाता आपकी शक्ल बदल के। तो लोग तो अब देखते हैं ना, अरे ये मर्डर करके गया, तो आपको पकड़ते हैं, बोले हाँ यही मर्डर करके गया। फिर हालांकि जिन्नात करके जाएगा। अगर आप लोग ये सब मानते हैं कि जिन रूप बदलता है, जिन ऐसा कभी सुने अखबार में या न्यूज में सुने कभी कि जिन्नात ने रेप किया, जिन्नात ने चोरी करके गया, जिन्नात ने मर्डर किया? मानेगी जज वकील ये बात मानेंगे? दुनिया के लोग भी नहीं मानेंगे बात। तो ये सिस्टम अल्लाह ने रखा ही नहीं है कि भेद बदले और फिर डिस्टर्बेंस पूरी दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाए, है ना। और वो लोग का कैरेक्टर भी तो क्या है, जिन्नात का कैरेक्टर भी तो कुरान ने दिया ना। जिन लोग उड़ते हैं पलक झपकते में आसमान तक चले जाते हैं, समझे, आसमान तक जाते हो अल्लाह की बातें सुनने। पहले वो वहां पे जाया करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह ने बैंड कर दिया। अब ऊपर कोई जो जिन्नात जाता है सुनने आसमान के ऊपर, अल्लाह क्या ऑर्डर भेजा, फरिश्तों को क्या बोल रहा है, अल्लाह क्या हुक्म भेज रहा है दुनिया में, तो अब कोई जिन्नात ऊपर जाता है तो आग का एक शोला उसका पीछा करता है। कुरान में सब बातें जी, आप पढ़ो ना तर्जुमे से कुरान, सब जानकारी होगी, मालूमात, समझा। तो जिन्नात तो पलक झपकते में सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब अल्लाह ने उनके ताबे करा था जिन्नात को मोजेजे के तौर पे, तो जब वो सुलेमान ने कहा कौन उसका मल्क है सबा का तख्त उठा के लाएगा, तो जिन्नात ने बोला आप अपनी जगह से उठने से पहले मैं लेके आ जाऊंगा। तो वो लोग उड़ते हैं, लेके आ जाते हैं। तो जिन्नात अगर इंसानों के कब्जे में रहे, ये जो जाहिल गुमराह कर रहे हैं ना, हमारे कब्जे में जिन्नात है, जिन हमारे कब्जे में, तो कब्जे में तो उठा लो ना। जो तुम्हारे मार रहा फिलिस्तीन में मार रहा नेतन्याहू और वो सब लोगों का पूरा उठा लो, उनको ही उठा लो, उनका पूरा मिसाइल गार्ड कर दो। जिन्नात लोग का तो है पावर, पलक झपकते में लेके उड़ जाओ उनका एटम। जिन्नात से काम कराओ ना, अगर है तो कब्जे में। फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, जिन्नात से काम कराओ ना, अगर है तुम्हारे कब्जे में। तो जो तुम बोलते सब घबराई चीटर लोग एक नंबर के, समझा। उठा लो न्यूक्लियर, उठा लो दुश्मनों का, काम कर लो ना जिन्नात से। ये सिर्फ जाहिल अवाम को गुमराह करते हैं कि जिन्नात हमारे कब्जे में। यार ये सब बातें सब गौर फिक्र करेंगे तो आएगा। तो वो जो है उसके क्या बोलते हैं, अल्लाह फरमा रहे सूरह अनाम में है, जिनों की जमात, तुमने इंसानों से बहुत फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया है देखिए आप। क्या जिन्नात ने, अल्लाह से जिन ने कहा कि मैं तेरे बंदे को गुमराह करूंगा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, है ना, और अक्सर तेरे नाशुक्रे रहेंगे, नाफरमान रहेंगे, है ना। तो अल्लाह फरमाए जा जो तेरी पैरवी करेगा तेरे साथ में उसको मैं जहन्नुम में डालूंगा, तुझको और जो तेरी पैरवी करेगा। तो वो अल्लाह को चैलेंज करके आया कि मैं गुमराह करूंगा इंसानों में से, समझा, लोगों को। तो उसका क्या मिशन है? अल्लाह की राह से भटकाना, गुमराह करना, उसका मिशन है। अल्लाह से वो चैलेंज करके आया है। तो अल्लाह ने उसको मोहलत दी, मोहलत मांगा तो उसको मोहलत भी दी गई, कयामत के दिन तक मुझे मोहलत दे। तो अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली बगैर वास्ता वसीले के। और आप लोग की तो बोलते हमारी नहीं सुनता, इब्लीस की सुन ली, या अल्लाह ने मोहलत दी उसको। तो वो जिन्नात जो है इंसानों को गुमराह कर रहा है, अल्लाह के रास्ते से भटका रहा है, समझा। तो वो अपना मकसद हासिल कर रहा है। जिन जो उसका मकसद है कि लोगों को गुमराह करना, अल्लाह को बोला ना तुम इंसानों को गुमराह करूंगा मैं, है ना। तो वो लोगों को वसवसा दिला के गुमराह कर रहा है, गलत काम करवा रहा है, कर ले गलत काम, है ना। बाप दादा पूज रहे, तुम भी उसी को पूजो, तुम हक पे हो, आता ना ख्यालात। तो ये शैतानी वसवसे पे चल रहा है। तो जितने लोग गुमराह है तो शैतान फायदा हासिल कर रहा है उन लोगों से, अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर रहा है। बोला ना अल्लाह को बोल के आया, तो वो अल्लाह का जो चैलेंज लगा के आया, तो इंसानों को गुमराह करके अपना वो मकसद हासिल कर रहा है कि मैं तेरे बंदे को आगे से पीछे से दाएं से बाएं से गुमराह करूंगा। बोला तो वो लोगों को गुमराह कर रहा है, हासिल कर रहा है, फायदा हासिल कर रहा है। उसका फायदा हो रहा है ना कि सब उसके फर्मा बरदार बन रहे हैं, उसकी इताअत कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी जो चैलेंज दे के आया था अल्लाह, तो वो ये फायदा हासिल कर रहा है, समझा आप। और इंसानों में से जो उसके साथी है, जो उसकी बातों पे चलते हैं, वो उसके साथी है, वो कहेंगे हमने एक दूसरे से फायदा उठाया। जिनने इंसान से फायदा उठाया कि गुमराह करके अल्लाह की नाफरमानी करा के अपनी इताअत करवा लिया। शैतान की इताअत कर रहे हैं ना लोग, नाफरमानी, शिर्क, बिदअत,
जिना, चोरी, डाका, हक मारना, शराब, जुआ, समझा, सूद, लेन देन, तो वो अपनी इताअत करवा रहा, तो फायदा ज्यादा हासिल कर रहा वो इंसानों से, तुमने खूब फायदा हासिल किया, वही अल्लाह फरमा रहे हैं। और इंसान जो उसके साथी है, उसके कहने पे चल रहे, शैतान बोल रहा है ना बुरे काम कर, चोरी कर, जिना कर, रेप कर, हक मार ले, कबर पूज, मूर्ति पूज, सूरज को पूज, चांद को पूज, अल्लाह को मत पूज, समझे, अल्लाह के साथ शिर्क कर, वास्ता वसीला वसीला लगा, पैगंबर को पुकार, वलियों को पुकार, ये सब शैतानी बातें, शैतानी वसवसा। तो जो इंसानों में थे वो उसकी बातों पे चल रहे, तो एक दूसरे का फायदा हो रहा है ना, जिना कर रहा है, अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा कर रहा है वो शैतान के कहने, तो हमने एक दूसरे से फायदा उठाया, उसने इंसान से फायदा उठाया गुमराह करके, उसका मकसद हासिल किया, और इंसान अपनी ख्वाहिशात, चोरी, पैसा, लूटना, धन मीन हड़पना, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, तो ये किसके कहने पे कर रहा है? इंसान शैतान के वसवसे पे अमल कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहा है, वो इनसे, ये उनसे, उसके कहने पे चल रहे, वो डालता है बुरे ख्यालात कि कर ले, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो है ना, तो तू कर ले, अल्लाह माफ करेगा, तो इंसान, हाँ अल्लाह तो गफूर रहीम है, ख्यालात आता है ना, चलो चोरी करो, डाका मारो, जमीन हड़प करो, ये सब शैतानी वसवसा है। ये है असल उस आयत का सही मतलब, कि जिन्नात ने अपना मकसद हासिल किया, इंसानों से फायदा हासिल किया, और इंसानों में से जो उसके नक्शे कदम पे चल रहे उसको दोस्त बनाए बैठे, शैतान की बातों पे चल रहे हो, शैतान को दोस्त बनाना, अल्लाह की बातों पे चलना, अल्लाह को दोस्त बनाना, समझा। तो शैतान की बातों पे इंसान लोग चल के एक दूसरे से, वो उससे हासिल कर रहा है और इंसान उसके कहने पे चल रहा है, तो फायदा उठाए, तो दोनों का ठिकाना जहन्नुम है। ये हुआ उसका सही मतलब, समझे आप लोग कुरान तर्जुमे से पढ़े तो पता चलेगा असल मकसद क्या है। न जिन इंसान को दिखता ना आंख में घुसता, कुरान से साबित है, वरना पूरी दुनिया का निजाम ही दरम बरम हो जाएगा, समझे आप। एग्जाम इम्तिहान हो रहा है ना स्कूल कॉलेज में, इधर उधर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े इम्तिहान, अगर जिन कब्जे में है तो फिर भेद बदल के, आपकी शक्ल बदल के एग्जाम दे के आ जावे हो पास, समझे आप बैठे रहो, आपकी शक्ल में वो चले जाए। ये आलिम मुफ्ती लोग के आज कब्जे में है बोलते ना, सब चीटर गुमराही। इंसान की दुनिया में जो इंसान का निजाम है वो अलग है, जिन्नात का निजाम अलग है, दोनों को अल्लाह ताला ने खलत मलत होने नहीं दिया है, अलग है दोनों मखलूक, समझा। बल्कि वो हमको देख रहा है, सुन रहा है, कुरान से साबित है। जब नबी कुरान पढ़ रहे थे तो वो लोग ने नबी को देखा भी और कुरान भी सुना, कुरान सूरह जिन आयत 1 में है, और नबी ने नहीं देखा, सूरह जिन में ये देखो, कहो मेरे पास वही आई, जिन्नात लोग कुरान से, है ना, सूरह आराफ आयत 27, बनी आदम, शैतान तुम्हें देखता है, तुम नहीं देखते। तो इंसान शैतान का कोई ऐसा रखा ही नहीं है मिलना, बातचीत करना, वरना निजाम धर्म भरम हो जाए। सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम को मोजिज़े के तौर पे दिया गया था, और किसी पैगंबर को नहीं, और किसी को नहीं, समझे आप। ये सब बातें कुरान में गौर फिक्र करे तो समझ में आएगी। अपनी जबान में पढ़िए, वो जो जबान आती, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, उड़िया, आसामी, समझे आप, इंग्लिश, उर्दू, अपनी जबान में कुरान की जानकारी लेंगे, मालूमात होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।